of inheritance, and in molecular basis of inheritance, we were doing very interesting topics. We were talking about the central dogma of the cell. And in central dogma of the cell, we studied that in cell, what happens, all the information is stored inside the nucleus in the form of DNA. And this DNA, it controls the synthesis of what type of an RNA will be formed, is controlled by the DNA, the information present in the DNA. And then this DNA, it helps in the formation of the mRNA. This mRNA comes out into the cytoplasm through the nuclear pore in case of eukaryotes and helps in protein synthesis. So DNA to RNA transcription, RNA to proteins is translation. Okay. So this central dogma I've told you, we have done about transcription also. And in transcription, we studied that the transcription can be studied in two parts. The first part is transcription. First type is transcription in prokaryotes, in which we studied that RNA polymerases first bind to a sigma factor to form a holoenzyme. This binds to the promoter sequence. After binding to the promoter sequence, the sigma factor dissociates, and then the core enzyme slides over the gene sequences, and then it reaches the terminator sequence, where the Rho factor comes, and then the synthesis of protein of RNA is complete. Termination, ending of the process takes place. This mRNA is now formed. It comes out into the cytoplasm directly, because in case of prokaryotes, there is no difference between a nucleoplasm and cytoplasm. In the cytoplasm itself, the nucleoid material is present. Now, we were talking about the transcription in eukaryotes. We have done that there is no sigma factor, there is no Rho factor. Instead of this, there are the initiation factors, types of proteins, special types of proteins which act as initiation factors, which bind to RNA polymerase and helps in initiation of strand synthesis. After this, again the mRNA, it slides over the structural gene and then results in the formation of mRNA. And then what happens? The terminator sequences are reached, where the release factors, they come and cause the release, the separation of this DNA, RNA, and the polymerases enzyme. And now this functional mRNA, this is what we were doing. This functional RNA, it comes out into the cytoplasm via the nuclear pore. But as I told you, that in eukaryotes, a large number of protective enzymes are present. And these enzymes, if whenever the RNA comes out into the cytoplasm, it will be degraded by these enzymes. RNase enzymes will be present. Okay, so now what has to be done? We have to disguise this mRNA. I told you we discussed about Zoom2 yesterday and this master of disguise. So here also, in each and every cell of our body, a master of disguise is present, that is the mRNA. And this mRNA, how does it disguises itself? It disguises itself by wearing a hat and then putting a tail. And what is that hat made up of? Or we don't call it the hat, we call it the cap. It is known as the G capping. And what is this G capping made up of? This G capping is made up of a special type of guanine residue, which is known as methyl guanine triphosphate. I repeat, methyl guanine triphosphate, जिसको कि हम short में small m for methyl GPPP भी लिख देते हैं. MGPPP, methyl guanine triphosphate. इसकी cap लग जाती है, so that means from the cap end, and this cap end means at the end or at the 5' end. The 5' end पे एक special guanine residue add करा दिया. And then 3' end, वहां पर polymerase जो RNA enzyme है वो उसको degrade कर सकती है, तो 3' end को भी हमने disguise कर दिया by adding a poly A tail, that is many nucleotides of adenine added at the 3' end. Okay, और ये कितने लंबे हो सकते हैं? 200 to 300 nucleotide long poly A tail में भी added. Okay, तो अब ये disguise, उसका head भी disguise हो गया, उसका leg भी disguise हो गया, उसकी tail भी disguise हो गई. And now when it comes out, Aditya, when it comes out into the cytoplasm, now it will not be degraded by adenase enzyme and can go to the ER, and on ER with the help of ribosomes, it can help in protein synthesis. Yes, Aditya. So ma'am, are there any possibilities कि RNA जब बना तो except DNA उसने खुद ने भी कुछ extra डाला, except ये this cap and tail? उसने अपने आप खुद एक्स्ट्रा डाला, मतलब जब वो बना था तो न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हुए थे. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से ही आरएनए बना है, डीएनए को रीड करता गया पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड्स को डालता गया. बनने के फौरन बाद पॉलीमरेज ने एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया फॉर डिस्गाइसिंग.
5' एंड पर और 3' एंड पर। अब डिस्गाइज हो गया। सो व्हाट एक्स्ट्रा, यानी आरएनए खुद तो और कुछ कर नहीं सकता ना, इट्स सिंपली अ मैसेंजर। जो कुछ कर रहा है वो पॉलीमरेज कर रहा है, और वो क्या रहा है, न्यूक्लियोटाइड साथ में ज्वाइन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये आरएनए एक्चुअली तो अपने आप कुछ नहीं करता, ये तो मैसेज लेके जाता है डीएनए का बाहर साइटोप्लाज्म में, सो दैट इट्स सीक्वेंस कैन बी रेड, और उसी सीक्वेंस के हिसाब से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो सके। ये सारे तो मैम आरएनए में म्यूटेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस आर वेरी वेरी कॉमन। इतने लेवल्स हैं जहां पर जो कुछ डीएनए ने कोड किया है उसमें कई लेवल्स पे चेंजेस हो सकते हैं। वन इज द पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, और ये दिस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज कॉमन इन ऑल यूकैरियोट्स। वी आर कमिंग टू दैट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है कि द आरएनए व्हिच इज फॉर्म्ड इमीडिएटली ओनली इन यूकैरियोट्स। रिमेंबर, प्रोकैरियोट्स का खत्म, डन। प्रोकैरियोट्स में आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं हमें देखना, हमें देखना है यूकैरियोट्स में एक, अपार्ट फ्रॉम कैपिंग एंड टेलिंग, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस which takes place in this RNA, which is known as splicing. And what is this splicing? जो भी हमारा RNA बना है, the whole RNA which is formed, it is not a functional RNA. उसको हम functional RNA नहीं कहते हैं। इस functional RNA में से introns are to be removed. ये functional क्यों नहीं है? Because it has a large number of coding, non-coding sequences. बहुत सारे ऐसे places हैं इसके RNA में जो कि नॉन कोडिंग है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको कि हम स्नप्स बुलाते हैं। स्नप्स दैट इज SNRNPs। ओके, SNRNPs दैट इज नोन एज स्नप्स। और ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे हेल्प इन, these are proteins along with some nuclear RNAs। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर RNAs प्लस प्रोटीन्स मिला के ये स्नप्स बनाते हैं। And these SNPs, what do? They carry out splicing. Introns, that is the non-coding portion, उसको कट करके निकाल देते हैं और exons को आपस में join कर देता है ligase. Okay, so I repeat, what is splicing? In splicing, the non-coding portion or the waste portion, which does not code for any protein, is removed from the mRNA. Okay, mRNA से उस portion को हम क्या कहते हैं? We call it the introns. The useful portion are known as the exons. सारे इंट्रॉन्स को स्नप्स रिमूव कर देता है, बचे हुए एक्सॉन्स के छोटे छोटे पीसेस को लाइगेज आपस में ज्वाइन करके एक फंक्शनल एमआरएनए बनाता है। अब ये फंक्शनल एमआरएनए goes and helps in protein synthesis. I'll just show you here. This will be evident from this picture. Just give me a minute. So that these things are clear to you. See here. So this was the replication fork, etc., which we have done. कि जो DNA जब replicate करता है तो इस तरीके से replication होता है. Let's see if I can get a full screen. Okay. So here, this is the transcription process which we were discussing. Transcription process में क्या होता है? एक promoter sequence होता है, genes होती हैं, and then the terminator sequence. DNA temporarily थोड़ी दूर के लिए खुलता है. Temporary opening होती है. This is not a permanent opening. क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। वी आर कॉलिंग इट एज द ट्रांसक्रिप्शनल बबल। इसको हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शनल बबल। जितनी दूर में डीएनए खुल रहा है उस पोर्शन को हम ट्रांसक्रिप्शनल बबल बुलाते हैं। ओके, उतनी दूर में डीएनए खुला, थोड़ी सी दूर में उतनी दूर में आरएनए का सिंथेसिस होता चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉइलिंग हो जाएगी, यहाँ का डीएनए खुल जाएगा और इस तरह से एमआरएनए बनता चला जाता है। ओके, सो एज यू कैन सी कि डीएनए के सीक्वेंसेस, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं, कलर देखो, ए, G, C and T। जबकि जो आरएनए बन रहा है इसमें जहां जहां पर T आना चाहिए था वहां पर आ जाता है U। Okay, so this is what RNA polymerase takes care of. Okay, so now what happens in after transcription? Steps of transcription: initiation, elongation and termination. अब after transcription क्या होता है? After transcription, in case of prokaryotes, eukaryotes में कुछ special नहीं चाहिए। Three things are happening. So the first thing which is happening is a cap of methyl guanine triphosphate is added to the 5' end, and a poly A tail 200 to 300 nucleotide long poly A tail is added to the 3' end, and then
स्प्लाइस आउट इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है इस आरएनए से। जो आरएनए बना है इसको हम फंक्शनल आरएनए नहीं कहते, और आरएनए का इन सारे में के ऊपर इन सारी चीजों का होना इज नोन एज आरएनए प्रोसेसिंग। तो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग फाउंड इन यूकेरियोट्स, और explain the post-transcriptional modifications taking place in RNA in of eukaryotes। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमें उसमें मेंशन करने होते हैं। कैपिंग, as the capping suggests a 7-methyl guanine triphosphate group is added। ये आप देखो, this is guanine 1,2,3 phosphate group, it is added। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा का पूरा जो है ये एक G cap बन जाता है, and 3-N the primary transcript of RNA is cut at the specific site। 100 to 200 adenine nucleotides are added as the poly A tail। तो सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, 100 to 200, sometimes 200 to 300 nucleotides are added। अब the third important thing was splicing out। splicing out का मतलब है cutting out of introns। अब introns क्या होते हैं? Introns are, they are the regions of the gene, they are the regions of the genes that do not code for a protein and do not appear in the final mRNA molecule। The final functional mRNA में introns नहीं होते, उनको हटाना पड़ता है। And generally जो non functional mRNA होता है उसमें protein coding sequences are interrupted by introns। Okay, why these introns are present? अभी तक इसका कोई हमें फंक्शन नहीं पता चला है। They may help is in RNA transport or control of gene expression। They may make it easier for sections of genes to be shuffled in evolution। हो सकता है ये किसी तरीके से, अभी तक कुछ नहीं पता है। All these are our gut feelings, all our जिसको कहते हैं hunches, कि अच्छा हो सकता है ये इसलिए काम में आते हैं, हमें पता नहीं है किसलिए काम में आते हैं। So one of the hunch is कि हो सकता है ये एवोल्यूशन में काम आते हैं। पूरी जीन बनी सपोज 5 एक्सॉन से, 5 एक्सॉन में एक थोड़ा सा एक इंट्रॉन रह गया, एक इंट्रॉन रह गया, आरएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया, आरएनए का सीक्वेंस चेंज होगा, उससे बनने वाला प्रोटीन चेंज हो गया, प्रोटीन चेंज हुआ तो उसका फंक्शन चेंज हो गया, और मे बी इसी चीज से एवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो मे बी दे हैव अ रोल इन एवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई हमें एक्सेप्टेड रीजन नहीं पता चला है। दे आर few prokaryotic examples, but most introns are found in eukaryotes। I told you बायोलॉजी में एक्सेप्शंस हर जगह है, जस्ट मिनट, हर जगह एक्सेप्शंस है। वैसे तो इंट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में ही मिलते हैं, बट एक्सेप्शनल केसेस में कई बार प्रोकैरियोट्स में भी मिल गए हैं। कैसा देखते हैं मैम? इधर अभी एवोल्यूशन की बात हो रही है, बट मैम बार बार वही वाला जो इंट्रॉन हर एक प्रोजेनी में बार बार थोड़ी ना आ जाएगा। मतलब हर प्रोटीन में क्यों नहीं आएगा? हर प्रोटीन में सेम डीएनए जा रहा है भाई, डीएनए से बन रहा है ना एमआरएनए, और एमआरएनए में इंट्रॉन्स है। जब तक डीएनए चेंज नहीं होता वहीं सेम इंट्रॉन आता रहेगा, क्योंकि जब भी डीएनए एमआरएनए बनाएगा तो उसमें वो इंट्रॉन आएगा। तो मैम जरूरी थोड़ी ना हो सकता है जो दूसरी प्रोजेनी बनी है उसमें वो इंट्रॉन को समझ के हटा दिया एमआरएनए, तो फिर मैम वो तो एवोल्यूशन तो हो गई नहीं ना उसका, वो तो हट ही चुका है। may lead to evolution, may not lead to evolution। वैसे तो इंट्रॉन्स हमेशा हटते ही हैं। आई एम सेइंग जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा फुल प्रूफ होता ही है, लेकिन बाय चांस उसमें कोई चेंज आ गया तो उससे एवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ऐसी बाय चांस कोई इंट्रॉन रिमूव होने से रह गया, उसको सेल ने पार्ट ऑफ एक्सॉन मान लिया, तो आरएनए चेंज हो जाएगा, आरएनए चेंज होगा तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। दिस इज व्हाट सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये सब हंचेस है, अभी तक कोई बहुत एक्सेप्टेड रीजन हमें नहीं पता चला है। ये सब कहा जा रहा है, जैसे एवोल्यूशन है ना, हर कोई अपनी थ्योरी देता है, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा एवोल्यूशन, बट हम वहां जाके नहीं देख रहे हैं। सिमिलरली अभी तक हम किसी थ्योरी का फुल प्रूफ हमें पता नहीं चला है कि हाँ इसीलिए इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट, नेचर ने इसलिए इंट्रॉन्स को डाला है क्योंकि ये इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, अभी तक ये पता नहीं चला है। Okay, so some genes may have long introns, some may have short introns। जैसे कि एक डिस्ट्रोफिन जीन है और जो कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी कॉज करती है, उसमें 70 इंट्रॉन्स होते हैं। जो 99% ऑफ जीन सीक्वेंस है उसमें ज्यादातर इंट्रॉन्स होते हैं, खाली 1% होते हैं एक्सॉन्स। ठीक है, तो इतने कईयों में इतने ज्यादा क्यों होते हैं, कईयों में बहुत कम होते हैं, 10%, 20%, 50% ही होते हैं। तो कितने इंट्रॉन्स होंगे एक एमआरएनए में डिपेंड्स फ्रॉम जीन टू जीन। ठीक है, however not all eukaryotic genes have introns। histone gene for example, अब ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी या बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपके नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। histone gene
इज वन ऑफ द जीन जिसमें कोई इंट्रॉन होता ही नहीं है, सीधे सीधे जीन बनी, उसमें कोई स्प्लाइसिंग होनी नहीं है, सीधे सीधे वो प्रोटीन बना देगी, ठीक है। एंड डिस्ट्रोफिन इज द जीन जिसमें 99% इंट्रॉन्स ही इंट्रॉन्स होते हैं, खाली 1% फंक्शनल जीन, ठीक है। ओके, सो देन इज समरी ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग। अब आरएनए प्रोसेसिंग की समरी क्या है? पहला तो हमने देखा, जो सबसे पहले जो आरएनए बनता है उसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, उसको हम फंक्शनल एमआरएनए नहीं बुलाते इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्लीज प्रोकैरियोट से कंफ्यूज मत करना। एक कैप लगाई जाती है, पॉली ए टेल लगाई जाती है एंड इंट्रॉन्स आर स्प्लाइस्ड। ये स्प्लाइसिंग को आप ऐसे शो कर सकते हैं, ये आप समरी ऑफ प्रोसेसिंग को ऐसे फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं। दैट इज व्हाट इज दिस शोइंग, ये पता होना चाहिए। व्हाई ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं? बिकॉज जिस समय बोर्ड में टाइम कम हो और ज्यादा बताना हो, तो अगर आपने ऐसा डायग्राम बना करके शॉर्ट में इसके आगे लिख दिया कि यहाँ इसमें मैं कैपिंग दिखा रहा हूँ, इसमें मैं पॉली ए टेल दिखा रहा हूँ, इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्प्लाइसिंग, तो आपके 3 स्टेप्स यहाँ कवर हो गए। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट में एटलीस्ट the examiner will know that you have covered majority of the point and the chances are कि आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो फ्लो चार्ट sometimes come very handy। ओके, तो अब इसमें क्या बताया? दिस इज द जीन सीक्वेंस। उस जीन सीक्वेंस को डीएनए को रीड करके उससे बना एक प्राइमरी प्री एमआरएनए। हम उसको एमआरएनए तभी बनाएंगे जब ये एक्चुअली अपना फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा। ये अभी नहीं कर सकता प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसमें कैपिंग होगी 5' एंड पर एक जी कैप, मिथाइल ग्वानिन की कैप ऐड कर दी जाएगी। दूसरी चीज क्या होगी? सेकंड स्टेप विल बी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में ये इंट्रॉन्स जितने भी थे वो रिमूव कर दिए जाएंगे। एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 साथ में जुड़ा बाय द लाइकेज एंजाइम, और फिर उसके बाद बाहर जाने से पहले एक पॉली ए टेल ऐड कर दी गई। अब ये कैपिंग, स्प्लाइस्ड and tail added mRNA is the functional mRNA, जो कि साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में जाएगा और राइबोसोम्स की हेल्प से ट्रांसलेशन का स्टेप्स कैरी आउट करेगा। ओके, so this is the summary of the post transcriptional modification seen in case of eukaryotes। okay, अब इसके बाद now they are saying कि अब इसके बाद वो जाएगा और जाकर के राइबोसोम्स की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस कॉज करेगा। इसका मतलब फिनिश हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, वी हैव टू स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस होता क्या है? अगेन अ क्विक रिवीजन। ट्रांसलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द एमआरएनए। एमआरएनए की सीक्वेंस को रीड करना राइबोसोम्स की हेल्प से, और फिर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द राइबोसोम्स की हेल्प से उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स का बनाना। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स को बनाने में ओनली दिस एमआरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एमआरएनएस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। कौन कौन से 3 तरीके के एमआरएनएस होते हैं? एक तो ये एमआरएनए हमारे सामने है जो कि डीएनए से बनकर के आ रहा है, ठीक है। दूसरा आरएनए इज the ribosomal RNA which is present inside these ribosomes. Ribosomes are the protein factories. So in protein factories के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है, that is the ribosomal RNA. It forms a part of ribosomes and help in identification of it attaches to the messenger RNA and helps in protein synthesis. और तीसरा सबसे important RNA is the transfer RNA. ठीक है, और इस ट्रांसफर आरएनए का नाम हमने ट्रांसफर आरएनए क्यों रखा? ये किस चीज का ट्रांसफर करता है? हमारी पूरी बॉडी में, अब हमारी सेल के अंदर अमीनो एसिड्स आर स्कैटर्ड एट वेरियस लोकेशंस, ठीक है। उन सारे अमीनो एसिड को बाइंड करके लाना राइबोसोम तक, क्योंकि राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम के सब यूनिट के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, वहां तक अमीनो एसिड को बाइंड करके ट्रांसफर करने का काम करता है ट्रांसफर आरएनए। So let us see कि ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, that it is able to bind to amino acid and bring it to the site of protein synthesis. So this is the shape of a transfer RNA, but remember that this is a 2-dimensional shape. जब हम इसको 2-dimensional shape हम बुलाते हैं clover leaf like structure. वो clover leaf होती है ना 4 पत्तियों वाली, okay? So it is called a clover leaf like structure, but this is a 2-dimensional structure. अगर नीट में या एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, इट इज अ एल शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, 3-dimensional शेप, जब ये और फोल्डिंग हो जाती है इसमें 3D शेप, इसका एल शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके,
So what is the parts of the RNA? The transfer RNA are short RNAs that fold into a characteristic clover leaf-like pattern, 2D structure. Some of the nucleotides are modified to become things like pseudouridine and ribothamidine. ठीक है, तो इसमें कुछ यूनिक टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो फॉर्म. और ये यूनिक टाइप कैसे बनते हैं? कहीं बाहर से नहीं आते. जो हमारा नॉर्मल यूरेसिल था, उस यूरेसिल में थोड़े से मॉडिफिकेशन होके और वो एक सूडो यूरिडीन बन गया, यानी यूरिडीन से मिलता जुलता स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ यूरेसिल उसका वो बन गया. ठीक है, और अगर सूडो यूरिडीन इज प्रेजेंट तो सी हियर एट दीज लोकेशंस यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है द सूडो यूरिडीन स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट. एंड राइबोथाइमिडीन, ये जो टी, आइडियली टी तो होता नहीं है ना, आरएनए है ये. आरएनए में टी कहाँ से आया? तो दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टी. ठीक है, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टी इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ टी आरएनएस, और उसको हम राइबोथाइमिडीन कहते हैं. तो टू exceptional unique kind of nucleotides found in tRNA are pseudouridine जो कि इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, एंड राइबोथाइमिडीन जो कि टी से डिनोट किया जाता है. ये यूनिक है क्योंकि बाकी एमआरएनएस में इस तरीके के nucleotides are not found. Okay, each tRNA has 3 bases that make up the anticodon. This end is known as the anticodon loop. Okay, इसको हम कहते हैं T5C लूप. इसको T5C लूप क्यों कहा? नाम से लिख रहा है T5 फॉर सूडोयूरिडीन और C, तो इसको हम T5C एंड कहते हैं, और इसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन लूप. इसको कहते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट. एंड दिस साइट, wait, I forgot the name of this site. I'll just tell you the name of this site. This is known as the DHU arm. This arm is known as the DHU arm. ठीक है, I repeat, anticodon loop, anticodon end, the amino acid attachment site, T5C arm and the DHU arm. ठीक है, अब इसके बाद let us see ये anticodon arm में क्या important होता है. They have 3 base, these base pair with the 3 bases of the codon on mRNA during translation. ये tRNA यहाँ पर एक वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा विद द एमआरएनए. जो एमआरएनए आएगा राइबोसोम के अंदर, उस एमआरएनए से एक वीक बॉन्ड फॉर्म करता है दिस एंटीकोडॉन लूप. सिर्फ यहीं से अटैचमेंट होता है और वीक बॉन्ड बन जाते हैं. तो अगर एमआरएनए, सपोज जहां मेरा कर्सर है वहां पे एमआरएनए प्रेजेंट है, अगर एमआरएनए में यहाँ पर जी है तो वो सी के साथ वीक बॉन्ड बना सकता है. ऑल्दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक डीएनए विल नॉट बी फॉर्म, बट बिकॉज दे कैन फॉर्म बॉन्ड विद वन अनदर. यहाँ पर सी है तो वो जी के साथ बॉन्ड बना सकता है. और थर्ड यहाँ पर आई इन्होंने शो किया हुआ है. आई इसको वोबल पोजीशन. जनरली कहते हैं कि फर्स्ट 2 बेसिस पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, थर्ड वाले बेस के ऊपर वीक बाइंडिंग होती है. इस वीक बाइंडिंग को हम वोबल पोजीशन या वोबल बाइंडिंग भी कहते हैं. ठीक है, लेकिन सपोज अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ इस एमआरएनए में टी होगा, तो ए और टी के बीच में सॉरी ए और यू के बीच में सॉरी वीक बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, और ये वीक बॉन्ड बनना क्यों जरूरी है? सो दैट यहाँ जो भी एमआरएनए की सीक्वेंस है उससे बाइंड करके उस एमआरएनए की सीक्वेंस वाला अमीनो एसिड ये साइट ऑफ सिंथेसिस पर लेकर आ जाएगा. ओके, सो आई रिपीट, एंटीकोडॉन लूप में 3 बेसेस आर प्रेजेंट जो कि वीक बाइंडिंग शो करते हैं विद द एमआरएनए, इसीलिए इसको एंटीकोडॉन लूप कहा जाता है. ठीक है, देन इज each tRNA and its corresponding amino acid attached to the, yes Aditya? मैम ये जो अभी आपने डायग्राम दिखाया ये एक तरीके का लिंकेज भी तो दिखा सकता है, क्योंकि डीएनए में भी हमने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे और आरएनए में भी, तो इसलिए ये भी कह सकते हैं ना कि आरएनए से ही डीएनए डेवलप हुआ है. ये भी तो रीजन कंसीडर कर सकते हैं tRNA को देख करके टू सम एक्सटेंट. यस, क्योंकि इसमें भी आप देखो वीक बॉन्ड्स तो बन ही रहे हैं ना, इनमें tRNA के स्ट्रक्चर में वीक बॉन्ड्स बन रहे हैं. ठीक है, तो यस वी कैन से कि हाँ हो सकता है जो प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल रहा हो वो आरएनए रहा हो और उससे डीएनए डेवलप हो गया हो, बिकॉज यहाँ पर देखो वीक बॉन्ड्स बन रहे हैं, बट दीज बॉन्ड्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डीएनए. ठीक है, बहुत वीक बॉन्ड्स होते हैं. फाइन, सो एक हो गया एंटीकोडॉन लूप. आई होप दिस इज क्लियर. एंटीकोडॉन आर्म. फिर उसके बाद होता है सेकेंड इज द
a set of enzyme, the amino acyl tRNA synthetases are used to charge the tRNA with proper amino acid. यहाँ पे जो amino acid attachment site है, this is the site 3' जहाँ पर actually जो amino acid है, it comes and binds to this site. और ये जो amino acid और इस tRNA के बीच में जो टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है is carried out by amino acyl tRNA synthetase enzyme. सारे रिएक्शन किसी न किसी एंजाइम के प्रेजेंस में होते हैं. So the bond between the amino acid and the 3' of tRNA takes place with the help of amino acyl tRNA synthetase enzyme. Okay? जिसकी वजह से जब यहाँ अमीनो एसिड अटैच हो गया तो अब हम इस आरएनए को टीआरएनए को क्या बुलाएंगे? चार्ज्ड टीआरएनए. ठीक है. और अगर इसमें से अमीनो एसिड निकल गया है, हट गया है, तो डिस्चार्ज्ड या अनलोडेड टीआरएनए हम इसको बुलाएंगे. Some tRNAs can pair with more than one codon. The third base of the anticodon is called the Wobble position. It can form base pairs with several different nucleotides. इसका क्या मतलब है, ये आगे जब हम लोग जेनेटिक कोड करेंगे तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके. तो अब दे आर शोइंग कि कैसे mRNA का सिंथेसिस हुआ. mRNA में एक प्रोमोटर साइट होता है, सीक्वेंस होते हैं, देन दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर. देन यहाँ से पॉलीमरेज बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, सिंथेसिस होगा और mRNA बन जाएगा. mRNA की सीक्वेंस जो है उसको रीड करके एक प्रोटीन बन जाएगा. तो दे आर शोइंग यू द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द सेल इन शॉर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. ठीक है. नाउ अगेन उसी चीज का रिपीटेशन है. ये डीआरएनए यहाँ से mRNAs are formed, or these mRNAs then come out into, sorry, they are showing you how ribosomes are produced. Ribosomal proteins and rRNA का synthesis nucleus के अंदर हुआ, rRNA बाहर आया, ribosomal proteins के साथ associate हुआ और ribosome बना लिया. साथ ही साथ mRNA बाहर आया, mRNA और rRNA ने साथ में combine किया और एक प्रोटीन का synthesis start कर दिया with the help of tRNA. ठीक है. Now is the next part, that is translation. How does translation takes place? Now, first of all, what is translation? This is, I hope, clear. mRNA की सीक्वेंस को रीड करके उससे प्रोटीन्स का बनाना is translation. अब translation prokaryotes और eukaryotes में small amount of differences can occur in translation. Let us see what is the difference. In prokaryotes, the ribosome bind to specific translation initiation sites. There can be several different initiation sites on the messenger RNA. A prokaryotic mRNA can code for several different proteins. Translation begins at an AUG codon or sometimes a GUG codon. The modified amino acid N-formyl methionine is always the first amino acid of the new polypeptide. See, I think before translation, if you do not understand genetic code, you may feel difference. Like you may face difficulty in AUG, GUG. ये क्या होते हैं? ये methionine क्या है? Okay, so we will take this translation later. First, let's talk about the genetic code. Genetic codes आपको समझ में आ गया तो translation बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. ठीक है? Now, what is genetic code? Each group of 3 nucleotides on the mRNA is a codon. जहां से mRNA को हमने रीड करना स्टार्ट किया, we know RNA is made up of nucleotides. 3 nucleotides read together which code for one amino acid. हर गोविंद खुराना ने genetic code discover किया था, an Indian scientist. Okay, so he said that 3 nucleotides together code for one amino acid. अब mRNA को क्यों देख करके कैसे बॉडी को पता चलता है कि किस तरीके का प्रोटीन बनाना है, कौन कौन से अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करना है? तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हमने अल्फाबेट्स को पढ़ा, हमने सोचा कोई ए ई की फोनेटिक साउंड को देखा, ई ए सी एच, ओके, दिस बिकम्स ईच. ओके, अब डीएनए में आरएनए को रीड करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, रैंडमली नहीं रीड करते, 3 न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ रीड करते हैं. एंड 3 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर code for one amino acid, and this is known as the genetic code. This is the genetic code. When these 3 nucleotides are read together, they code for phenylalanine. यानी कि अगर RNA में ये 3 nucleotides present हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय वहां पे कौन सा अमीनो एसिड बॉडी ऐड कर देगी या tRNA ऐड कर देगा? फिनाइल एलानिन ऐड कर देगा.
अगर UUA UUG प्रेजेंट है तो वहां पर ल्यूसीन ऐड कर दिया जाएगा। इन चारों में से कोई भी है तो वहां पे सीरीन ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द जेनेटिक कोड विच इज मोर और लेस यूनिवर्सल। सारे ऑर्गेनिजम्स में with very few exceptions this is universal code, okay, and was discovered by Hardev Govind Khurana and by 3 nucleotides only। because अब वो इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, although उसकी फैक्ट की बिल्कुल सही कह रहे हैं, it was discovered later, but why he took 3 nucleotides, not 4 nucleotides, not 2 nucleotides, why? बिकॉज सबसे पहले उन्होंने सीधे ये जंप करके कि ओके कितने न्यूक्लियोटाइड से ये अमीनो एसिड, इस पे नहीं पहुंचे। फर्स्ट ऑफ ऑल द अमीनो एसिड्स वर डिस्कवर्ड, सो वी केम टू नो कि 20 अमीनो एसिड से ज्यादा अमीनो एसिड्स वर नॉट डिस्कवर्ड, इससे ज्यादा अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स 4 ही तरीके के होते हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है कि वो they will produce 20 different types of amino acids। अगर 2-2 के combination में होंगे तो how many types of amino acids are possible? You tell me। अगर 2-2 का combination होगा तो कितने possible amino acids बन सकते हैं? बेटा क्विक थोड़ी सी मैथ्स लगाओ। U के साथ या तो A आया, U के साथ T आया या U के साथ C आया। ठीक है, सॉरी U के साथ A आया, G आया या C आया, ऐसे G के साथ A आया, U आया, C आया, तो कितने मैक्सिमम तरीके के ज्यादा से 8 टाइप्स ऑफ हो सकते हैं। लेकिन अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, अमीनो एसिड्स आर 20। ठीक है, तो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, इसका मतलब 2-2 के कॉम्बिनेशन में नहीं एग्जिस्ट करते होंगे जेनेटिक कोड। अगर 4 टाइप्स ऑफ होते तो इसका मतलब बहुत सारे तरीके के अमीनो एसिड्स होने चाहिए थे, जबकि इतने सारे तरीके के अमीनो एसिड्स होते ही नहीं है। ओके, सो व्हेन ही गेव द कोड, द ट्रिपलेट कोड, देन ही सेड कि देयर वर 64 कॉम्बिनेशंस possible, और उस 64 combination में when he carried out the experimental work he found out that more than one codon can code for the same amino acid। तो बहुत टाइम लगा था, it was not a very one day discovery। पहले तो he had to zero down on कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स ही मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। देन ही फाउंड आउट कि कौन कौन सा कोडॉन कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, एंड नाउ the universality of this genetic code has been proved। ठीक है, so out of these 64 amino acid combinations, codon combinations possible, these are the codons which code for the respective 20 amino acids। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि यस बेटा मैम, तो इसमें ये अगर आज एक नया अमीनो एसिड डिस्कवर हो जाता है तो ये इसको स्टैंडर्ड मानेंगे या फिर नई टेबल बनेगी? हमें देखना पड़ेगा, हो सकता है कि इसी में से कोई एक कोडॉन हो, फिर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसी में से कोई कोडॉन हो। सपोज हम मान रहे हैं आज को कि ये 4 अमीनो एसिड जो है वो प्रोलीन के लिए कोड करते हैं, हो सकता है इनमें से कोई दूसरा अमीनो एसिड के लिए कोड करता हो, हमें लगता है प्रोलीन के लिए ही कर रहे हैं, प्रोलीन से क्योंकि उसका मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। तो पहले वी हैव टू एनालाइज बिकॉज दिस हैज बीन प्रूव्ड राइट बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा, और अगर हमें कई ऐसे मिलते हैं which are not following the rules of this genetic code, तब maybe we look into other possibilities कि okay क्यों exceptions हैं। जैसे मेंडल के केस में था, बहुत सारे exceptions मिले, तो हमने देखा कि इसके भी it is not a universal rule, law of dominance वगैरह यूनिवर्सल नहीं होता है, लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया। मैम, एक से ज्यादा कोडॉन मतलब एक वो बना सकते हैं अमीनो एसिड, बट कुछ अमीनो एसिड का ग्रुप एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा। I didn't get you। मैम जैसे कि GUU, GUC, GUA और GUG वैलिन बनाते हैं। यस, बट अगर बनाते नहीं है, वैलिन के लिए कोड करते हैं, बनाता है कोई कुछ नहीं करते हैं। और अगर वैलिन और ल्यूसीन का एक कॉम्बिनेशन है तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का ही प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन तो इस प्रोटीन कैसा बनेगा ये तो इस पे डिपेंड करता है ना कि कौन कौन से अमीनो एसिड साथ में जुड़े रहे हैं, कितने और कौन कौन से अमीनो एसिड साथ में जुड़े रहे हैं, ये डिटरमाइन करता है प्रोटीन का सीक्वेंस। ठीक है, अगर वैलिन प्रोलीन और उसके साथ ग्लूटामिक एसिड जुड़ गया तो वो एक अलग प्रोटीन बन जाएगा, खाली ल्यूसीन और प्रोलीन मिलकर जो प्रोटीन बनाएगा वो अलग होगा, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन डिपेंड अपॉन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, दैट इज कौन से अमीनो एसिड्स और कितने अमीनो एसिड्स किस तरीके से जुड़े थे। तो मैम अगर 64 तो ये क्या कहते हैं कोडॉन,
तो मैम प्रोटीन का भी नंबर कोई स्पेसिफिक है या बस? नहीं, अल्फाबेट्स का नंबर स्पेसिफिक है ना बेटा, उससे कितने वर्ड्स और कितनी बुक्स बन सकती हैं, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। हम कितने भी कॉम्बिनेशंस में उन अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं। सो दीज कोडॉन्स आर दोज अल्फाबेट्स, और जो न्यूमरस बुक्स लिखी गई हैं, न्यूमरस टेक्स्ट लिखे गए हैं, दोज आर द प्रोटीन्स। तो ये कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में जुड़ेंगे, कितने कितनी लेंथ में जुड़ेंगे, कौन सा प्रोटीन बनाएंगे, दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको हम समराइज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, so is this clear? अब इन 64 codons में से there are 3 codons which do not code for any amino acid. Hargobind Khorana found कि 3 जो हैं वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते. And what are these 3 amino acids? They are the which are these 3 codons? They are UAA, UAG and UGA. ये 3 codons जब किसी RNA सीक्वेंस में आते हैं तो उस RNA सीक्वेंस में उस जगह पर कोई भी अमीनो एसिड नहीं आता. अगर कोई अमीनो एसिड नहीं आया तो इसका मतलब आगे बनने वाले पेप्टाइड बॉन्ड रुक जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन वहीं रुक जाएगा. तो इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जब सेल को प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप करना होता है और अमीनो एसिड ऐड करना बंद करना होता है, एट दैट लोकेशन these stop codons they come, and when the tRNA or ribosome comes across a stop codon, तब उस समय आगे स्टैंड सिंथेसिस रुक जाता है और जितना प्रोटीन बना है it goes, holds itself and carries out its function. ठीक है, that is why these 3 codons are known as the stop codon. ठीक है, अब इसमें एक कोडॉन है जो कि अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, बट इट इज सीन कि ये अमीनो एसिड ये कोडॉन एक ड्यूल कोडॉन की तरह काम करता है. व्हाई अ ड्यूल कोडॉन? बिकॉज इफ इट इज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ mRNA, जनरली जब mRNA को रीड करना स्टार्ट करता है, राइबोसोम्स या एंजाइम्स रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो इट इज ऑब्जर्व कि जनरली चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, the first amino acid is always AUG. इसीलिए हम इसको स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं. ठीक है, और ये कौन सा अमीनो एसिड ऐड करता है? सबसे शुरू में मिथायोनिन या इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स फॉर्माइल मिथायोनिन ऐड करता है. ठीक है, so methionine is the first amino acid which is added because the first codon which is present in mRNA is generally AUG. और अगर ये बीच में आ गया mRNA सीक्वेंस के, तब क्या करेगा? क्या एक नया स्ट्रैंड सिंथेसिस शुरू हो जाएगा? नहीं, उस समय वो सिर्फ मेथायोनिन ऐड करते. तो अगर ये शुरू में है तो ये स्टार्टिंग करेगा डीआरएनए सिंथेसिस की, और अगर आरएनए के बीच में आया कहीं तो वहां पे सिंपल मेथायोनिन ऐड करेगा. इसीलिए हम कहते हैं इसका ड्यूल फंक्शन है. At the beginning, it acts as a start codon. In the center of an mRNA, it acts as a codon for simply adding methionine. हाँ बेटा बताइए. मैम अगर कोडिंग ये है AUG, फिर क्या होगा? 2 methionine ऐड हो जाएंगे. पहला वाला स्टार्ट कोडॉन की तरह और दूसरा वाला नॉर्मल मेथायोनिन की तरह. AUG आता चला गया, तो तब तक मेथायोनिन ऐड होता रहेगा जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता. तो पहला AUG तो स्टार्ट करेगा और बाकी के मेथायोनिन करेंगे. यस, क्योंकि बीच में जब भी आता है तो मेथायोनिन ऐड करता है. ठीक है, हो सकता है जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा वो लीड होता चला जाएगा और ऐड होता चला जाएगा मेथायोनिन. फाइन, सो दिस इज कॉल्ड एज द जेनेटिक कोड. अब आपको पता चल गया, उसमें शुरू में होता है मेथायोनिन, ऐड होता है AUG कोडॉन की वजह से. कोडॉन्स क्या होते हैं, कैसे mRNA, ये सब कोडॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? ये सब कोडॉन्स प्रेजेंट है mRNA पर, और इन कोडॉन्स को एक एक करके, जैसे राइबोसोम्स में एक एक करके 3 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करते गए. ओके, पहले 3 न्यूक्लियोटाइड्स कौन से आए? CAA, ग्लूटामीन डाल दो, सॉरी सबसे पहले तो मेथायोनिन होगा. AUG मेथायोनिन, दूसरा क्या आया? ओके CAA, चलो ग्लूटामीन, tRNA लाओ जो ग्लूटामीन वाला है, वो यहाँ पर आके ग्लूटामीन डालेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट को रीड करो. नेक्स्ट AGU है, ओके सिरीन वाला अमीनो एसिड को tRNA लेकर के आएगा. और इसी तरह से मेथायोनिन, ग्लूटामीन, सिरीन, इन सब के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाएंगे इन अमीनो एसिड्स के बीच में, और एक प्रोटीन चेन क्रिएट होती चली जाएगी. ठीक है, तो एक तरीके से कह रही ना. ओके आदित्य प्रेजेंट मैम, कुणाल प्रेजेंट मैम, ओके तनिष, शिवा प्रेजेंट मैम. तो व्हाट इज दिस? आई एम टेलिंग यू, ओके तुम प्रेजेंट हो, बोलो प्रेजेंट मैम. तो दिस इज जस्ट टेलिंग, ओके अब मैं बता रहा हूँ ये वाले अमीनो एसिड ऐड करो. दिस इज माय कोडॉन सीक्वेंस, रीड द फर्स्ट 3,
and bring that amino acid and add it. Next ये रीड करना है, क्योंकि ये मैसेज लेके मेरे को डीएनए ने भेजा है कि इसी तरीके का प्रोटीन बनना है. डीएनए में कोई चेंज आया, एमआरएनए की सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा. एमआरएनए की सीक्वेंस में चेंज आया, उससे बनने वाला प्रोटीन चेंज हो जाएगा. क्योंकि अगर हम यहाँ पर सपोज लेट अस सी दिस एग्जांपल, CCG इज प्रोलीन, और अगर CCG की जगह किसी वजह से यहाँ C की जगह A आ गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया खाली, तो प्रोलीन की जगह वहां पे कौन सा अमीनो एसिड आ जाएगा? थ्रियोनीन. और याद है आपको बार बार स्ट्राइक कर करके 11th में क्या बताया था? The primary structure of a protein is directly related to its final 3D structure. What do you mean by primary structure? The sequence of amino acid forms the primary structure. If the primary structure changes even slightly, the final 3-dimensional structure will change. और अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है. The structure of a protein is directly related to its function. क्योंकि उसी तरीके से एक्टिव साइट्स ओरिजिनेट हो जाती है ना. अगर एक्टिव साइट का ही शेप चेंज हो गया तो वो रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा. फाइन. सो अंडरस्टूड जेनेटिक कोड. हाउ इज द जेनेटिक कोड रेड? नाउ these are some of the properties of the genetic code. Again board में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं. What is the yes आदित्य? तो मैम वो जो टेबल है पूरी याद करनी पड़ेगी. कर लोगे तो अच्छा है बेटा. वैसे पूरी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली नहीं आते बहुत ज्यादा, लेकिन करने में कोई बुराई नहीं है. अगर कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए. और मैम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं. मैंने आर्टिफिशियली मतलब लाइक यही कोडॉन लेके हमने मतलब बाहर आर्टिफिशियली प्रोटीन्स बना दिए. हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं. सी कई सारे जो सिंथेसिस की जाती है, अब वो कितना एफिशिएंट होगा, एफिशिएंसी उसमें कितनी होगी, उसको नहीं कहा जा सकता. कोशिश तो हमने डीएनए बनाने की भी की थी, लेकिन वो जेड डीएनए बन गया, जिगजैग डीएनए बन गया, बायोलॉजिकल डीएनए नहीं बन पाया. प्रोटीन्स को भी इस तरीके से हम बना सकते हैं. उसमें हमें क्या करना है? पेप्टाइड बॉन्ड बनवाना है साथ में. ठीक है. वी कैन डू, बट हाउ फंक्शनली एक्टिव दैट प्रोटीन कैन बी, दैट कैन नॉट बी गारंटीड. हो सकता है फंक्शनली एक्टिव भी हो जाए. राइट. सो लेकिन उसके लिए एमआरएनए पहले आप बनाओगे, फिर एमआरएनए को एक्सप्रेस कराओगे, उसके लिए तो बायोलॉजिकल सिस्टम चाहिए. भाई राइबोसोम्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, टीआरएनए चाहिए. इससे तो सिंपल अमीनो एसिड्स को जोड़ो और प्रोटीन्स बना लो, दैट इज इजियर. ठीक है. Okay, so what are the properties of the genetic code? Genetic code is triplet. 3 codons, 3 nucleotides make a codon. Okay, that is why we call the genetic code as triplet code. The triplet consists of 4 into 4 into 4, that is 66 codon, which may code for 20 essential amino acid. The triplet code of mRNA has been accepted. Universal hai ye code. Okay, the codon is degenerate. There are 64 codons in the genetic code, which code for 20 amino acids, out of which 4 codons are signals. Therefore, signals क्यों? या तो stop या start का signal, 3 stop का signal वाले और 1 start का signal वाला, इसलिए हम उनको 3 कहते हैं. 3-4 जो है वो signals हैं. ठीक है. Therefore, 61 codons are code for amino acid. It means that more than 1 codon may be coding for individual amino acid. Obviously, अगर 61 तरीके के codons हैं जो कि 20 अमीनो एसिड्स, अगर उसमें से मिथाइलिन निकाले तो 19 अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं. इसका मतलब 1 अमीनो एसिड will be coded for by more than 1 codon. जैसे कि हमने देखा ना अभी इस केस में, प्रोलीन के केस में 4 कोडॉन्स मिलकर के 4 तरीके के कोडॉन्स एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं. ल्यूसीन के केस में भी, सीरीन के केस में भी. ठीक है. थ्रियोनिन, एलिनिन, टायरोसिन में भी ये 2 तरीके के कोडॉन. तो इसका मतलब more than 1 codon can code for the same amino acid. This is what we mean by the degenerate nature of amino acid. और बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है? What do you mean by the degeneracy of the genetic code? Okay, what do you mean by degenerate nature of genetic code? Explain with the help of example. ऐसे क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आएंगे जेनेटिक कोड पे. ओके, तो इसका degenerate nature का क्या मतलब है कि 1 codon, more than 1 codon can code for the same amino acid. phenylalanine, allicin, किसी एक का उठा के आप एग्जांपल दे दो. तो आदित्य इसलिए जरूरी है क्योंकि जेनेटिक कोड पे क्वेश्चन आते हैं और जब उसमें एग्जांपल कोड करने होते हैं ना और जेनेटिक कोड याद नहीं होता तो आपको एग्जांपल्स देने में प्रॉब्लम आती है और वही मार्क्स लूज होते हैं. ओके. देन इज genetic code is non overlapping. This is very important. It is non overlapping.
which means that the same letter does not take part in formation of more than one codon. Okay, तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? Wait. Okay, board चाहिए होगा इसके लिए. So I'll just quickly set up the board. See here. Degenerate nature, sorry, non-overlapping nature. Non-overlapping nature मतलब उसके लिए पहले मैंने एक simple mRNA बनाया. Okay, this simple mRNA की sequence बनाई. AUG सबसे पहले लिख लेते हैं because methionine यहाँ पे ऐड होगा. GUCCUA. ठीक है, ये एक hypothetical code बना लिया. ठीक है, so this is one codon. This is the second codon and this is the third codon. कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये तीन तो हो गए फर्स्ट कोडॉन, फिर चलो इसको ले लिया सेकंड कोडॉन, इन तीन को ले लिया थर्ड कोडॉन, इसको ले लिया फोर्थ कोडॉन. नो, इट इज नेवर ओवरलैपिंग. द न्यूक्लियोटाइड्स नेवर ओवरलैप वन अनदर ड्यूरिंग कोडॉन फॉर्मेशन. ये पहले तीन फर्स्ट कोडॉन बनाएंगे, उसके बाद वाले नेक्स्ट तीन सेकंड कोडॉन. Overlapping is never there. So this is called as the non-overlapping nature of the genetic codon. Okay. Screen share. Okay. So yes, where were we? Just a minute, wrong file. Just give me a minute. Something else will keep on opening. Okay, I'll reopen the file again. Are you able to see my screen? Are you all able to see my screen? No, ma'am. No, you're not able to? No, ma'am. Okay, just a minute. I'll just again share it. Now are you able to? Yes, ma'am. Okay, good. Okay, fine. So we're doing this. That is, now you're able to see my board also here and the screen. Please set my picture here. So you'll be able to see the screen also, the screen and this board also. I want you to see both simultaneously. Okay, so you have understood what you mean by non-overlapping nature of the genetic code. Then the next point says that code is non-ambiguous. Okay, what do you mean by a non-ambiguous nature? That means if I say that this code for methionine, so always and always this code will code for always methionine. It is not that after 2 days, after 2 years or after 3 years, it will start coding for serine. No, the nature, what codon is coding for which amino acid will remain same always. Okay, so this is what we mean by non-ambiguous nature. A particular codon will always code for the same amino acid. It may also be the same amino acid that will be coded for different by different codon. अगर हम कहते हैं कि प्रोलीन या सीरीन को 4 different codons कोड कर रहे हैं, तो वो 4 different codons हमेशा उस प्रोलीन या सीरीन को कोड करेंगे. ऐसे नहीं आज वो प्रोलीन सीरीन के लिए कोड कर रहे हैं, कल किसी और चीज के लिए कोड करने लगे. Okay, so this is what is known as the non-ambiguous nature of the genetic code. However, when one codon codes for 2 amino acid, it is called ambiguous. अगर एक कोडॉन 2 अमीनो एसिड के लिए कोड कर दे, then we say that it is called as the ambiguous nature, but ऐसा नहीं होता. The genetic code is non-ambiguous. We don't have any ambiguous codon. Okay, then the codon is formalist. अब इसी चीज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लेते हैं. यही जो सीक्वेंस थी, अब इस सीक्वेंस को रीड करते समय what we did, हमने इसको रीड करा, यहाँ से रीड करा,
AUG, फिर इस G को छोड़ दिया, रीड ही नहीं करा, नेक्स्ट 3 को रीड करा UCC, फिर इन 2 को छोड़ दिया और इनके बाद वालों को रीड करा. इट इज नेवर दैट. इसको हमने बुलाया कॉमा. सो द जेनेटिक कोड इज कॉमा लेस. कोई भी न्यूक्लियोटाइड बीच में छोड़ा नहीं जाता है. सीक्वेंस में रीडिंग होती है न्यूक्लियोटाइड्स की. फर्स्ट 3, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3. हमेशा रीडिंग ऐसे होगी. नो न्यूक्लियोटाइड्स आर लेफ्ट इन बिटवीन while the reading is being done. This is called as the comma-less reading. For example, U, तो पहले 3 U, then C, UC, G, UA and UCC. कोई इंटरप्शन बीच में कोई भी न्यूक्लियोटाइड छोड़ा नहीं जाएगा while reading of this mRNA is being done. Okay. Then the codon has a polarity. The code has polarity which is read between the start and the stop codons. एक डायरेक्शन होता है रीड करने का हर एक कोडॉन का. कोडॉन की रीडिंग हमेशा स्टार्ट होती है जहां पर स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट होगा. AUG है, ठीक है, CCC, यहाँ पर है UAA. ये है स्टार्ट कोडॉन एंड दिस इज स्टॉप कोडॉन. तो पोलैरिटी ऑफ द जेनेटिक कोड विल बी फ्रॉम स्टार्ट कोडॉन टू द स्टॉप कोडॉन. तो हमेशा स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट होकर के it is read up to the stop codon. So it is read between the start and the stop codon. इसको हम कहते हैं polarity of the codon. Then the code is universal. Universal that means इसमें कभी भी कोई changes नहीं होते हैं. In hardly in any organism any exception to this codon has been found. क्योंकि nature में हमें 20 amino acids ही मिले हैं. Very few exceptionally extra amino acids have been found. और इस कोडॉन का एक्सेप्शन की AUG में मिथाइलिन की जगह कोई और अमीनो एसिड ऐड करने लगे. दिस एक्सेप्शंस हैव नॉट बीन फाउंड इन नेचर, ऑल्दो सम doubt, some type of diversity may be observed here and there, but 90 to 99% this code is universal, applies to all organisms, including all microorganisms also. Okay, so this is a universal codon. Okay, so these were the features of a codon. Okay, so we have to study now. After doing the genetic codon, we will start with the process of translation. So what is there in translation? Wait, let me see if we have time left. Then we'll see. 11:50. Do we have time left? Classes. Fine. So fine. Understood genetic code because it was important to understand genetic code. Only then you will be able to understand the process of translation. Now process of translation will become very easy and very quickly we'll be able to do that.